بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ سیاسی گہما گہمی کی۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر سیاسی افق پر پل پل بدلتی صورتحال۔ اسپیکر سبطین خان نے 6 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنا دی۔ پی ٹی آئی نے اپنے دیے 3 ناموں میں سے 2 بدل دیے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا چناؤ کون لڑے گا؟ جمعے کو کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے یہ رپورٹ۔ کی بدلتی وسعت، ناصر محمود کھوسہ کا نگران وزیر اعلیٰ بننے سے انکار۔ نصیر خان بھی وزیر اعلیٰ کی دوڑ سے باہر ہوئے۔ پی ٹی آئی نے حکمت عملی تبدیل کر لی۔ عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں ایک اور بیٹھک۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نوید چیمہ اور احمد نواز سکھیرا کے ناموں پر اتفاق ہو گیا۔ نے گورنر پنجاب کو ناصر کھوسہ، احمد نواز سکھیرا اور ناصر خان کے نام بھجوائے تھے۔ ناصر کھوسہ نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ نصیر خان پر دوہری شہریت کا ٹھپا نکلا۔ اپوزیشن اتحاد نے بڑے سوچ بچار کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کے لیے سید محسن رضا نقوی اور احد چیمہ کا انتخاب کی۔ پگ کون پہنے گا؟ حکومت اور اپوزیشن کے 2 نام سامنے آ گئے۔ جمعے کو پہلی بیٹھک ہوگی۔ حکومت نے میاں اسلم اقبال، بشارت راجہ، مختوم ہاشم جمع بخت کے نام دیے۔ اپوزیشن نے ملک احمد خان، حسن مرتضیٰ، ملک ندیم کامران کو فائنل۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ کی سمری پر دستخط نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر بھی ایک پیج پر نہ آ سکے۔ کیا پارلیمانی کمیٹی اب وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر پائے گی یا اس بار بھی معاملہ الیکشن کمیشن میں ہی جائے گا؟ ایسا ہوا تو الیکشن کمیشن 48 گھنٹے میں نگران وزیر اعلیٰ کا اعلان کرے گا۔ آٹے کے بحران کے حوالے سے خبر دیں گے آپ کو۔ جنوبی پنجاب میں آٹے کا بحران جاری، شہریوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ کہتے ہیں مہنگائی نے مشکلات بڑھا دی ہیں، اب تو بچوں کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت مہنگائی پر قابو پا کر کم از کم روٹی تو سستی کرے۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ لالپور پیروالا میں آٹے کا بحران بدستور جاری، مرد، خواتین اور بچے گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مجبور۔ شہری سستا آٹا نہ ملنے پر حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، کہا 10 کلو کا تھیلا خریدنے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں خوار ہونا پڑتا ہے۔ دہاڑی پر جائیں تو آٹا نہیں ملتا، آٹا لینے آئیں تو دہاڑی ضائع ہو جاتی ہے۔ کہاں جائیں اور کیا کریں اور کیا کھائیں؟ 8 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے صرف 1300 بیگ کا کوٹا ہے۔ یہاں 7 ساڑھے 7 بجے صبح آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم دیر سے آئیں تو پھر آگے ہمارا نمبر نہیں آتا۔ ہم محنت کش لوگ ہیں، صبح 7 ساڑھے 7 بجے یہاں آتے ہیں۔ لیا کے شہری بھی آٹا کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ ٹریکنگ پوائنٹ پر مرد و خواتین لائنوں میں خوار ہونے لگے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر عبدالرحمان عواسی نے ٹریکنگ پوائنٹس کا دورہ کیا اور آٹے کا معیار چیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کے سیل پوائنٹس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں سیل پوائنٹس مزید بڑھا دیے جائیں گے۔ ہر پہ ہمارا آٹا آ رہا ہے ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا پوری مارکیٹ میں 374 دکانوں پہ کل گیا، آج جتنے پہ جائے گا شام کو ڈیٹیل بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارا وافر آٹا ہے، ضلع میں ہمارے کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے۔ میں اپنی انفورسمنٹ ٹیم کے ساتھ یہاں آپ کے پاس آلریڈی وزٹ پہ آیا ہوا تھا، میں نے آ کے آٹے کی گنتی کی ہے، آٹا ٹھیک ہے، پھر میں نے سیمپل ڈرا کیا ہے۔ شجاع آباد کے شہری بھی 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے۔ کہتے ہیں مہنگائی نے مشکلات بڑھا دی ہیں، اب تو بچوں کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت مہنگائی پر قابو پائے اور روٹی سستی کرے۔ نان بھائیوں کا کہنا تھا کہ تمام اشیاء مہنگی ہیں، وہ کیا کریں؟ بلیٹن میں بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ میاوالی میں مہنگائی نے غریبوں کا جینا مشکل کر دیا۔ غریبوں کی خوراک دالوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ چکن انتہائی مہنگا ہونے کے بعد اب بچوں کو دال کھلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاوالی میں مہنگائی سے غریبوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں آئے روز اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دالوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، اب غریب آدمی کے لیے دال کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ چاول لینے آئے جی، پچھلی بار آئے ہیں چاول لینے اور ریٹ تھا، اب لینے آئے ہیں اور ریٹ ہے، غریب کے پاس سے باہر ہے۔ روز دن بدن چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، دالیں چاول جو ہے نا سب بڑھ رہے ہیں۔ دکانداروں کو کہنا تھا کہ دال مونگ 40 روپے اضافے کے ساتھ 250 روپے، دال چنا 30 روپے اضافے سے 220 روپے، دال ماش 45 روپے اضافے کے بعد 380 روپے کلو ہو گئی۔ سفید چنے 250 روپے سے بڑھ کر 280 روپے، سیلا چاول 235 روپے سے بڑھ کر 320 روپے، چاول باسمتی 260 روپے سے بڑھ کر 340 روپے اور ٹوٹا چاول 100 روپے سے بڑھ کر 160 روپے کلو ہو گیا۔ اصل میں دالیں تمام مہنگی ہوئی ہیں، دال چنا مہنگی ہوئی، دال مونگ مہنگی ہوئی۔ دال چنا کا ریٹ 190 روپے تھا جو کہ اب 220 روپے ہے۔ دال مونگ نے سب سے زیادہ ریٹ چینج کیا، پہلے 205 روپے تھی، اب 250 روپے کلو ہے۔ دکانداروں کو مزید کہنا تھا کہ جب تک حکومت کمپنیوں کو پابند نہیں کرتی تب تک قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ احمد پور شرقیہ میں مہنگائی کا طوفان تھمنے میں نہیں آ رہا۔ چکن کے بعد دالیں بھی انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں۔ غریبوں کے لیے اب سبزیوں کے ساتھ ساتھ دال کھانا بھی مشکل ہو گیا۔
इस बारे में मजीद जानते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में महंगाई का तूफान जारी है। गरीब के लिए अब दाल खाना भी मुश्किल हो गया। अहमदपुर शिरके में दाल चना 220, दाल माश 380 और दाल मूंग 260 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। सरकारी रेट के मुताबिक दाल चना 180, दाल माश 330 और दाल मूंग 220 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर रेट लिस्ट अपडेट न होने से दुकानदार परेशान है। उनका कहना है कि 2 माह पहले की लिस्ट पर दालें फरोख्त करके नुकसान हो रहा है। ये तकरीबन 11 महीने की आई हुई है लिस्ट, तो अभी तक लिस्ट नहीं आई। रेट बहुत बढ़ गए हैं मार्केट में, थोक मार्केट में, तो हम बेच रहे हैं अपने पुराने रेट पे। हमें नुकसान हो रहा है, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्या सुने, महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल ना किया तो खदशा है माह रमजान में दालों का रेट 1000 रुपए फी किलो तक पहुँच सकता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, अहमदपुर शर्किया। मुल्तान शहर में गैर कानूनी ऑयल एंड गैस एजेंसियां इंतजामिया के काबू से बाहर। अक्सर एजेंसियों पर हिफाजती इकदाम न होने से नाखुशगवार हादसात का खतरा। महकमा सिविल डिफेंस इस सिलसिले में क्या इकदाम और कानूनी कार्रवाई करती है, इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी ऑयल एंड गैस एजेंसियां इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस बनने लगी। इंतजामिया इन एजेंसियों को लगाम डालने में नाकाम हो चुकी है। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि हिफाजती इकदाम न होने से कई मरतबा नाखुशगवार वाकयात पेश आए हैं, और ये सब वाकयात इन दुकानों और एजेंसीज में पेश आए हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती। कासिम बेले में भी हादसा हुआ, आपको भी पता होगा, शायद आपने देखा कि नहीं देखा। वहाँ भी एक नौजवान भी फौत हो गया, धमाका हुआ है। यहाँ इनके अपने इंतजाम बिल्कुल कम नजर आ रहे हैं। गैर कानूनी और हिफाजती इकदाम न करने वाले दुकानदार अपने साथ साथ शहरियों के लिए भी शदीद खतरे का सबब है। तर्जुमान सिविल डिफेंस का इस हवाले से कहना था कि हमारा इदारा गैर कानूनी एजेंसीज के खिलाफ क्रैक डाउन करता रहता है और गुज़िश्ता चंद माह में 35 से ज्यादा FIRs दर्ज करवाई गयी। इलीगल जो पेट्रोल यूनिट्स है वो शहर में काफ़ी जगह खुल गए हैं। इसकी हमें भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई और उसके सिलसिले में हम लोग जो भी लीगल जो कार्रवाई होती है वो हम करते रहते हैं। अभी ये लास्ट 5 मंथ में भी तकरीबन 35 जो हैं वो इलीगल यूनिट्स हैं, इनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है वो लिए हैं। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार साने से बचा जा सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शकील सुल्तान के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। रहीमिया खान शहर में जगह जगह LPG सिलेंडर्स की गैर कानूनी दुकानें हादसात को दावत देने लगी। डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी कमेटी मेंबर फौरन जलानी कहते हैं कि LPG सिलेंडर के 150 दुकानें रजिस्टर कर चुके हैं। हर बार तमाम दुकानों का विजिट करके हिफाजती इंतजाम के इंस्पेक्शन करते हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीमिया खान में LPG सिलेंडर्स की गैर कानूनी दुकानों की भरमार। गैर रजिस्टर्ड और बगैर हिफाजती इंतजामात की LPG सिलेंडर्स की दुकानों से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी कमेटी मेंबरान फरान जिलानी कहते हैं कि सिविल डिफेंस और रेस्क्यूअर्स पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी कमेटी तश्कील दी गई है। LPG सिलेंडर्स की 150 दुकानों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर चुके हैं। माहाना विजिट्स के दौरान LPG सिलेंडर्स की गैर कानूनी फरोख्त, आग बुझाने वाले आलात की तंसीबात न होने, गैर रजिस्टर और SOPs पर अमल न करने वाली दुकानों पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जाती हैं। LPG सिलेंडर्स वाली दुकानों के सर्टिफिकेट्स और सिलेंडर्स की स्टोरेज भी हर सूरत चेक की जाती है। रहीमिया खान में तकरीबन 150 के करीब हमने LPG के सदर है उनके साथ तावन करते हुए उनके हमने रजिस्टर्ड की हैं उनको, और उनको फायर सेफ्टी की हम तरबियत भी देते हैं, और उनकी बिल्डिंग उनकी दुकानों में हम गायब विजिट भी करते रहते हैं जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर के और उनके जो हवादार हो और एग्जॉस्ट फैन वगैरह जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उस लिहाज से जो सेफ्टी के लिहाज से वो चीज़ें चेक करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी कमेटी मेंबर का कहना था कि LPG सिलेंडर्स की दुकानदारों को रेस्क्यू मुहाफिज बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि ये दुकानदार न सिर्फ हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाएं बल्कि हादसात की सूरत में अपनी और शहरियों की जानों का तहफ्फुज कर सकें। SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। और अब रुख करते हैं बहावलपुर का। महकमा सिविल डिफेंस की गफलत, गैर मियारी सिलेंडर्स का खुलेआम इस्तेमाल मौत बांटने लगा। कायम शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखते हैं। बहावलपुर में सिविल डिफेंस के दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर मौत का घनौना कारोबार जारी। लारी अड्डा पर दर्जनों LPG सेल प्वाइंट्स कायम। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। दुकानदारों का कहना था कि महंगाई के दौर में एक वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। जब तक हुक्मरान ठीक नहीं होते इनका कारोबार भी कानूनी है।
ये गैर कानूनी हो तो अब हम अपने बच्चे किधर करें? बच्चों को रोजी खिलानी है या नहीं खिलानी? गड्डियां खड़ियां कर दी है, बच्चों की रोजी नहीं करी है। ठीक है भाईजान, कोई गैर कानूनी नहीं है। गैस पवावांगे, गड्डियां चलावांगे, बच्चों की रोजी कमावांगे। लारी अड्डा पर कायम दर्जनों दुकानों पर हिफाजती इंतजामात के बगैर एलपीजी सिलेंडर की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। दुकानदारों का कहना था कि सिलेंडरों का दुकान के अंदर होना ही सबसे बड़ा हिफाजती इंतजाम है। हिफाजती है, सबको दुकान वाले हिफाजत करके सिलेंडर रखे हुए हैं और जब आग बुझाने वाले वो रखे हुए हैं। बड़े पैमाने पर गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स की सेल महकमा सिविल डिफेंस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। सर्दी और महंगाई का गठजोड़ झुग्गियों के मकीनों के लिए जिंदगी अजाब बन गई। सर छुपाने के लिए छत है, ना ओढ़ने को लिहाफ, बच्चों को खाना खिलाने के पैसे भी नहीं। महंगाई और सर्दी झुग्गियों में रहने वालों के लिए इम्तिहान बन गई। आमना और निमरा बीबी सर्दी में मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। अलिशा सिफ की रिपोर्ट में देखते हैं। महंगाई और सर्दी ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। सर पर छत है और ना ही ओढ़ने के लिए लिहाफ, जबकि बच्चों को खाना खिलाने के पैसे भी नहीं। महंगाई और सर्दी ने झुग्गियों में रहने वालों के लिए जीना बोझ बना दिया। मुश्किल होती है हमारा सर्दी में रहना, इधर रात का या दिन का, या कोई बारिश वगैरह आ जाए। ये जो हाल पे लगाते हैं ना फ्लावर वगैरह, उनके वो पत्ते फेंक देते हैं, वो हमारे बच्चे उठा के आकर आग जलाते हैं। पूरी रात हमको बैठना पड़ता है आग जला के। झुग्गी में रहने वाली आमना बीबी का कहना था कि कभी कभी भूख लगने पर बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती हूँ। सर्दी से निपटने के लिए शादी हाल के इस्तेमाल शुदा फूल लाकर जलाती हूँ, मगर रात होते ही सर्दी बढ़ जाती है और ठिठुरते रात गुजरती है। सुबह नाश्ता नहीं किते, एडी गरीबी, इतनी महंगाई हो गई है, कोई हालात नहीं गरीब का। सर्दी दे विच बच्चे दूर दूर चौके आने, शापर चौके जलाने, बेटा कोई हाल नहीं ऐसा गरीब दा। कोई साड़ी मदद हो सके तो साड़ी करो। हाजा बीबी का भी कहना था कि महंगाई के बायस बच्चों के लिए गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते। घरों में काम करने जाते हैं मगर पूरा मुआवजा नहीं मिलता। मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, हुकूमत इनका भी ख्याल करे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। डेरा गाजी खान में मैपको की निजकारी के खिलाफ मुलाजिमीन से रापा एहतजाज। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की ज़ेरे तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। मैपको की निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने हड़ताल करके दफ्तरों के बाहर एहतजाज किया और निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का इस मौका पर कहना था कि वापडा की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि निजकारी को मुकम्मल खत्म किया जाए और कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। ये हमारा एहतजाज जारी है और जारी रहेगा जब तक ये हमें कहते रहेंगे, हम एहतजाज करते रहेंगे। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि इनकी आउटसोर्सिंग और निजकारी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा में स्टाफ की कमी को फौरी पूरा किया जाए और नई भर्ती का अमल शुरू किया जाए। मुतालबात न माने गए तो क़यादत के हुक्म पर हर सतह पर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। ज़िला कचहरी मुल्तान में नाके सिक्योरिटी पर वकला के तहफ़्फ़ुज़ात नफरी बढ़ाने के साथ वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे ठीक कराने का मुतालबा कर दिया। महर इमरान की रिपोर्ट में देखते हैं। वकला ने जिला कचहरी मुल्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, नफरी में कमी की वजह से वकला पर हमलों और लड़ाई झगड़ों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने में तकरीबन 5 से 6 वकला को बदतरीन तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, जो वकला कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए और आम आदमी के जो जमहूरी हकूक हैं जो उसे आइन देता है, उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। वकला का मजीद कहना था कि कचहरी में सिक्योरिटी कैमरे खराब हैं, जबकि बास अहम जगहों पर लगाए ही नहीं गए। 30 से जायद कैमरे खराब हैं, इंतजामिया फौरी ठीक करवाए। वैसे हालात हो जाते हैं। अब गेट पर थ्रू जो है यहाँ पे बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाए, सिक्योरिटी की तादाद को बढ़ाया जाए और जो गेट हैं जिस पे सिक्योरिटी मौजूद नहीं है वो बंद किए जाए यहाँ पे, या फिर उसे प्रॉपर तौर पे उस सिक्योरिटी की जाए, गेट लगाए जाए। जिला कचहरी मुल्तान में रोजाना 20,000 लोग आते हैं। नाखुशगवार वाकयात से निपटने के लिए हर गेट पर वॉक थ्रू गेट लगाए जाएं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान।
कोटअदू जिले इंतजामिया की नाहली तहसील चौक सरवर शहीद के शहरी साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। अजीजाबाद के मकीनों को रोजाना कई किलोमीटर का फासला तय करके पीने का पानी लाना पड़ता है। इस हवाले से देखते हैं चौधरी उमर की रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद में अजीजाबाद के मकीन साफ पानी के लिए रुल गए। यहाँ के मकीनों को रोजाना की बुनियाद पर कई किलोमीटर का फासला तय करके पीने का पानी भरकर लाना पड़ता है। शहरी कहते हैं कि 12 किलोमीटर दूर से गदर रेडी पर पानी लाते हैं। वजारत आबी वसाइल के ज़ेली इदारे PCRWR वाटर क्वालिटी लेबॉर्ट्री DG खान डिवीजन के साइंटिफिक ऑफिसर नईम इकबाल का कहना है कि जनूबी पंजाब के तमाम डिवीजन में आर्सेनिक और सेंकिया की मिकदार बहुत ज्यादा है। WHO ने इसकी मिकदार 10 ppb बताई है, लेकिन इन एरियाज में 250 से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में पेट की बीमारियां, टाइफाइड और जल्दी अमराज आम है। WHO ने इसकी मिकदार 10 ppb बताई है, लेकिन इन एरियाज में ये 200-250 ppb से भी ज्यादा है। इसके अलावा जो साल्ट्स हैं जिसमें बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, हार्डनेस है, TDS लेवल भी इनका बहुत ज्यादा है। ना बैठो अभी बड़ी दूर जाने तकरीबन कोई 10-12 मील सफर है, तो उस तो बाद इतने कोई असी घर 15-20 घर बैठे हाँ, ते पानी की सानू बड़ी तकलीफ है। रोज ही असी जाने लैके रेहड़ी ते खोटी, ते रोज ही असी आ जाने मुड़ के। अजीजाबाद के बासियों ने वजीर आला पंजाब से इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी उमर, रोही, चौक सरवर शहीद। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।